پچھلے زمانے کا ذکر ہے۔ کسی گاؤں میں ایک لوہار اور اس کا بیٹا رہتے تھے۔ ایک دن بیٹا اپنے باپ سے کہنے لگا، ابا ابا میرے لیے ایک چھری بناؤ جس کی دھار بہت تیز ہو۔ باپ نے کہا، بیٹا چھری بھلی نہ کٹھاری، یہ تو بتاؤ تم نے چھری کا کرنا کیا ہے؟ بیٹے نے گول مول سا جواب دیا، بس ابا مجھے چھری چاہیے۔ آخر بیٹے کے بے حد اصرار پر باپ نے لوہے کی چھری بنا دی۔ جب بیٹے کے ہاتھ میں ہتھیار آ گیا تو وہ شیر ہو گیا۔ لگا باپ کو ڈرانے دھمکانے کہ ابا فوراً راجکمار کے محل میں جاؤ اور میرے لیے راجکماری کا رشتہ مانگو، اگر نہیں مانگا تو میں یہ چھری مار کر تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ لوہار بیچارہ یہ سن کر تھر تھر کانپنے لگا۔ لڑکے کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ لوہار اس گھڑی کو کوسنے لگا جب اس نے بیٹے کو چھری بنا کر دی تھی۔ اب سوچنے لگا کہ کروں تو کیا کروں، ادھر کنواں ادھر کھائی، اگر راجا سے رشتہ مانگنے گیا تو راجا مجھے مار ڈالے گا، اور نہ گیا تو بیٹا مجھے مار دے گا۔ آخر کافی سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ یوں مرنے سے بہتر وہاں مرنا بہتر ہے۔ چلو راجا کے پاس چلتا ہوں، چاہے قتل ہی کیوں نہ ہو جاؤں، بات تو ہو جائے گی کہ لوہار راجا سے رشتہ مانگنے آیا تھا۔ اپنے بیٹے کے ہاتھوں گم نامی کی موت مرنے سے بہتر ہے کہ راجا کے ہاتھوں عزت سے مشہور ہو کر مر جاؤں۔ ایک دن لوہار ہمت کر کے راجا کے پاس پہنچا اور وہاں جا کر اپنے بیٹے کے لیے راجکماری کا رشتہ مانگا۔ یہ سن کر راجا کے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ کمی ہو کر میری بیٹی کا رشتہ مانگتا ہے۔ دل تو چاہا کہ ابھی جلاد کو حکم دے کر اس کا سر تن سے جدا کروا دوں، لیکن وزیر ذرا سمجھدار تھا۔ راجا کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، مہاراج اسے مروا دیا تو خام خواہ ہنسی مذاق ہوگی، لوگ بات کا بتنگڑ بنا دیں گے، ہم کس کا منہ بند کریں گے۔ عقل مندی یہی ہے کہ ہم کسی طرح سے اسے ٹال دیں، سانپ مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ہم اس سے ایسا سوال کر ڈالتے ہیں کہ جس کا جواب یہ ساری زندگی بھی ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ اگر گڑ دینے سے یہ مر جائے تو زہر کیوں دیجیے۔ اس کے بعد وزیر لوہار سے مخاطب ہو کر بولا، میاں لوہار، ہم راجکماری کا رشتہ تمہارے بیٹے سے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے ہماری ایک شرط ہے کہ تمہارا بیٹا کوئی ایسا کام کرے جو آج سے پہلے نہ کسی نے کیا ہو اور نہ کسی نے دیکھا ہو۔ لوہار شرط سن کر واپس لوٹ پڑا اور اپنے زندہ بچ جانے پر خدا کا لاکھ شکر ادا کیا۔ گھر آ کر اس نے اپنے بیٹے کو یہ بات بتائی۔ دونوں باپ بیٹے نے گاؤں چھوڑنے کا ارادہ کیا اور اس شرط کو پورا کرنے کے لیے سفر پر روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے ایک گھنے جنگل میں پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی شریں یعنی شیرس کے درخت کے نیچے بیٹھا ہے۔ زمین پر چاروں طرف شریں کے پیلے پیلے پھول بکھرے ہیں۔ آدمی نے چولہے میں اپنی ٹانگ ڈال رکھی ہے اور پیر میں سے تڑا تڑ آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ چولہے پر کھولتے ہوئے تیل کی کڑاہی رکھی ہے اور وہ پکوڑے تل تل کر کھا رہا ہے۔ لوہار اور اس کے بیٹے نے جب یہ عجیب منظر دیکھا تو وہ حیران ہو گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ کام تو راجا نے کہیں نہ سنا ہوگا اور نہ کہیں دیکھا ہوگا، چلو یہی سیکھتے ہیں۔ لوہار اس آدمی سے مخاطب ہو کر بولا، اللہ کے بندے، میرے بیٹے کو اپنا شاگرد بنا لو اور اسے بھی اس طرح سے پکوڑے تلنا سکھا دو۔ وہ آدمی لوہار سے بولا، میاں آگے چلے جاؤ، آگے میرا استاد بیٹھا ہے، وہ تمہارے بیٹے کو شاگردی پر رکھ لے تو رکھ لے، مجھے شاگرد بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سن کر دونوں باپ بیٹا آگے چلے گئے۔ چلتے چلے جا رہے تھے۔ آگے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑ کی چھاؤں کے نیچے ایک آدمی بیٹھا ہے اور بڑ کے چاروں طرف بڑ کا پھل بکھرا ہوا ہے۔ اس نے چولہے میں اپنی ٹانگ ڈال رکھی ہے اور ایڑی میں تڑا تڑ آگ کے شعلے نکل رہے ہیں اور چولہے پر ابلتے ہوئے تیل کی کڑاہی رکھی ہے اور وہ جلیبیاں تل تل کر کھا رہا ہے۔ لوہار اور اس کے بیٹے نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، ارے یہ کام تو پچھلے کام سے بھی مشکل ہے، یہ کام تو راجا نے نہ کہیں دیکھا ہوگا اور نہ کہیں سنا ہوگا، چلو یہی سیکھتے ہیں۔ لوہار اس آدمی سے مخاطب ہو کر بولا، اللہ کے بندے، میرے بیٹے کو بھی اپنے شاگردی میں رکھ لے، اسے بھی اس طرح سے جلیبیاں تلنا سکھا دے۔ اس آدمی نے لوہار سے کہا، میاں آگے جاؤ، آگے میرا استاد بیٹھا ہے، وہ تیرے بیٹے کو شاگردی پر رکھ لے تو رکھ لے، مجھے شاگرد بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سن کر دونوں باپ بیٹا آگے روانہ ہو گئے۔ وہ چلتے چلتے ایک اور جگہ پر پہنچے جہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بیری کے پیڑ کے نیچے بیٹھا ہے۔ زمین پر بیری کے میٹھے میٹھے بیر بکھرے پڑے ہیں۔ اس نے بھی چولہے میں اپنا پیر ڈال رکھا ہے اور پیر میں سے تڑا تڑ آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ چولہے پر گنے کے رس سے بھری ہوئی ایک کڑاہی رکھی ہے اور وہ گڑ بنا بنا کر کھا رہا ہے۔ لوہار اور اس کے بیٹے نے جب یہ منظر دیکھا تو من ہی من میں کہنے لگے، ارے یہ کام تو پچھلے کام سے بھی زیادہ مشکل ہے، یہ کام تو راجا نے نہ کہیں سنا ہوگا اور نہ کہیں دیکھا ہوگا، چلو یہی سیکھ لیتے ہیں۔ لوہار اس آدمی سے مخاطب ہو کر بولا، اللہ کے نیک بندے، میرے بیٹے کو بھی اپنی شاگردی میں رکھ لو، اسے بھی اس طرح سے گڑ بنانا سکھا دو۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، میں تیرے بیٹے کو اپنا شاگرد بنا لیتا ہوں، اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، یہ لو چابیاں۔ وہ سامنے ایک کمرہ ہے
उस कमरे का दरवाज़ा खोलो और अपने बेटे को कमरे में बिठाकर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दो। लुहार ने उस आदमी की हिदायत पर अमल किया। जब बेटे को कमरे में बंद करके वापस जाने लगा तो उस आदमी ने लुहार से चाबियां वापस ले ली और लुहार से कहने लगा, अब 1 साल के बाद वापस आना। लुहार चाबियां देकर अपने घर वापस लौट गया। उधर लड़का कमरे में भूखा प्यासा बैठा था, इंतजार कर रहा था कि कोई आए और उसकी मदद करे, लेकिन पूरा दिन गुजर गया और उसकी मदद के लिए कोई ना आया। फिर जब लड़के ने कमरे में चारों तरफ देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, खून खुश्क होने लगा। उसके सामने एक खौफनाक नज़ारा था। कमरे के अंदर चारों तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थी। लड़के ने सोचा, न जाने मुझसे पहले कितने ही लोग इस मौत के कमरे में अपनी जान दे चुके हैं और मेरा हाल भी उनसे कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा। मैं और मेरा बाप उस बाहर बैठे आदमी के धोखे में आ गए। अब मुझे भी इन आदमियों की तरह यहाँ पर एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरना पड़ेगा। एक रोज़ मेरी भी हड्डियाँ इन हड्डियों की तरह बिखरी पड़ी होंगी। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और फूट फूट कर रोने लगा। जब रोने से दिल का गुबार निकल गया तो कमरे में एक कोने में जाकर बैठ गया। दिल ने कहा, जब तक सांस तब तक आस। लड़के ने जमीन पर पड़ी हुई एक बड़ी सी हड्डी उठाई जिसका सिरा छुरी से ज्यादा तेज और तीखा था और दीवार खोदना शुरू कर दी। दीवार से मिट्टी गिरती रही और गिरती रही। आखिर रात दिन की मेहनत रंग लाई। दीवार में इतना बड़ा सुराख हो गया था कि एक आदमी उसमें से निकल सकता है। जब लड़का उसमें से निकलकर दूसरी तरफ गया तो क्या देखता है कि एक और कमरा उसका मुंतजिर है। कमरा खूब सजा हुआ है, कीमती पर्दे लटक रहे हैं। कमरे में बहुत कीमती कालीन बिछा हुआ है। जाली के पर्दे के पीछे सांस लेते हुए किसी बहुत हसीन जिस्म का एहसास होता है। जो ही लुहार के लड़के ने पर्दा सरकाया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या देखता है कि एक गदराए हुए गोरे रंग की मालिक एक बहुत खूबसूरत लड़की बिस्तर पर लेटी हुई सो रही है। जवानी की नींद में सांस लेते हुए उसका जिस्म मुसलसल हरकत में है। करवटों के बायस काले काले लंबे बाल उसके जिस्म से लिपटे हुए हैं। कुछ देर लड़का दीदे फाड़े उसे देखता रहा। उसी दौरान लड़की की आंख खुल गई। पहले तो लड़की अपने कमरे में अजनबी लड़के को देखकर डर गई और लड़का भी घबराया कि खुदा जाने क्या बला है। थोड़ी देर बाद जब दोनों मुत्तमीन हुए तो लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, आजा मेरे पास आजा, यहाँ बिस्तर पर बैठ और मुझे बता कि तू कौन है और यहाँ कैसे पहुँचा। यह सुनकर लुहार के लड़के की हिम्मत बढ़ी। उसने अपनी सारी कथा कही। पहले तो लड़की ने उसे कुछ खाने के लिए दिया और फिर कहा, जो आदमी बाहर गुड़ निकाल कर खा रहा है और जिसने तुझे कमरे में बंद किया है वो आदमी मेरा बाप है। मैं भी जादूगरनी हूँ, तू फिक्र न कर, मैं तुझे जादू सिखाऊंगी। लड़की अपने बाप से 2 गुना ज्यादा आगे थी। बाप अगर 14 दर्जे पर था तो बेटी 16 दर्जे पर थी। लड़की ने लुहार के लड़के को जादू सिखाना शुरू कर दिया और उसके अलावा उसे तरह तरह के फल और लजीज खाने खिलाती। अच्छी से अच्छी उसे पोशाक पहनने के लिए देती। इसी तरह से 1 वर्ष गुजर गया, लेकिन लुहार लड़के को लेने के लिए ना आया। उसने सोचा कि जब तक मेरा बेटा कामिल जादूगर नहीं बन जाता उसे लेने के लिए नहीं जाऊंगा। इस तरह वो लड़का साहिरा जादूगरनी से जादू सीखता रहा और एक दिन अपने जादू में माहिर हो गया। 2 वर्ष के बाद लुहार वापस आया। क्या देखता है कि वो आदमी उसी तरह बेरी के दरख्त के नीचे बैठा है। जमीन पर बेरी के मीठे मीठे बेर बिखरे पड़े हैं और उस आदमी ने अपनी टांग चूल्हे में डाल रखी है और पैर में से आग के शोले निकल रहे हैं और वो उसी तरह से गुड़ बना बनाकर खा रहा है। लुहार ने पूछा, अल्लाह के बंदे, मेरा बेटा कहाँ है? 2 साल पहले मैं उसे तेरी शागिर्दी में छोड़ गया था। वो आदमी कहने लगा, मैं तो 2 साल से यहीं पर बैठा हूँ और गुड़ बना बनाकर खा रहा हूँ। ना मुझे फुर्सत मिली और ना मैंने वहाँ जाकर देखा। तो अपने हाथ से अपने बेटे को कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा गया था। ये ले कुंजियाँ और अपने बेटे को जाकर देख ले। बाप ने सुना तो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। एक रंग आता और एक रंग जाता था। ये सोचकर कि 2 साल बाद बेटे की हड्डियां ही मिलें तो मिलें, वरना जिंदा मिलना तो नामुमकिन है। गुड़ खाने के उस शकीन आदमी को दिल में गालियां देता हुआ लुहार दौड़ा दौड़ा उस कमरे की तरफ गया और ताले में चाबी घुमाई। लड़की के कानों में जब चाबी की आवाज़ पड़ी तो लड़के से कहने लगी, अगर मेरा बाप हुआ तो हम दोनों को मार डालेगा और अगर तेरा बाप हुआ तो हम बच जाएंगे। लुहार दरवाज़ा खोलकर अंदर कमरे में गया तो कमरा खाली था। दीवार के सुराख में से गुजरकर जब दूसरे कमरे में पहुंचा तो क्या देखता है, सामने कमरे पर मसेरी पर एक खूबसूरत लड़की और उसका लड़का बैठे हुए हैं। मारने वाले से जान बचाने वाला ज्यादा बड़ा है। अपने बेटे को जिंदा देखकर बाप की जान में जान आई। दौड़कर बेटे को बेअख्तियार सीने से लगा लिया और खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। उसके बाद लड़के ने अपने बाप को लड़की का तारुफ करवाया। असल हकीकत से जब लुहार वाकिफ हुआ तो वो कांप कर रह गया। उसने उसके बेटे की जान बचाने पर लड़की का शुक्रिया अदा किया। वो खूबसूरत जादूगरनी साहिरा कहने लगी, अब तुम दोनों के बचने की फकत एक ही आस है और वो ये कि ए लुहार, तू रोता पीटता और सिसकता हुआ बाहर मेरे बाप के पास जा और उसे जाकर कह कि मेरा बेटा भूख प्यास से मर गया
तुमने उसे बाहर निकाला ही नहीं। अब मुझे इतनी इजाज़त तो दे कि उसकी हड्डियों को किसी कपड़े में बांध कर ले जाऊँ ताकि उसकी हड्डियों को दफन कर सकूँ। लुहार रोता हुआ कमरे से बाहर निकला। जैसा लड़की ने समझाया था उसने वैसा ही किया। गुड़ बनाता और खाता हुआ वो आदमी बोला, हाँ हाँ हड्डियाँ ले जा, मैंने उनका क्या करना है। और उस बूढ़े जादूगर ने हड्डियाँ ले जाने के लिए एक बड़ी सी चादर भी फराहम कर दी। लुहार दोबारा कमरे में आया और लड़की की बताई गई हिदायत के मुताबिक अपने बेटे को चादर में छुपा लिया। जब बेटे को चादर में छुपाए कंधे पर उठाकर बाहर जाने लगा तो लड़की बोली, मेरी एक बात पल्ले से बांध लो, मैंने तुम्हारे लड़के को जो जादू सिखाया है उस जादू के जरिए रास्ते में ही कहीं कमाई करना शुरू न कर देना। अगर तुमने रास्ते में ही अमीर होना शुरू कर दिया तो मेरे बाप को पता चल जाएगा और फिर वो तुझे और तेरे बेटे को नहीं छोड़ेगा। खूबसूरत साहिरा कमरे में ही रही। लुहार ने उस लड़की से कहा कि बेटी तू भी हमारे साथ चल, अपने संगदिल और जालिम बाप से रिहाई हासिल कर। लेकिन लड़की ना मानी और कहने लगी कि इस तरह से हम तीनों ही पकड़े जाएंगे और वैसे भी अब मेरा जीना मरना यहीं पर है, यहाँ से भागकर मैं कहाँ जाऊँगी। लुहार अपने बेटे को कपड़े में लपेटे कंधे पर उठाए बाहर निकला। उसने चाबियों का गुच्छा दूर ही से जादूगर की तरफ फेंक दिया जो अभी तक बैठा गुड़ बना रहा था और साथ ही साथ खा रहा था। जादूगर ने उसकी तरफ कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, चाबियाँ उठाई और फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। जब लुहार सफ़र किए उस आदमी से कहीं दूर निकल आया तो उसने अपने कंधे से नीचे उतारा, फिर अपने बेटे को चादर से बाहर निकाला और दोनों ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उन दोनों की जान बच गई। और फिर से बाप बेटों ने सफ़र का आगाज़ शुरू किया। वो चले जा रहे हैं और चले जा रहे हैं और चलते चलते जंगल से बाहर निकल आए। अब वो हरे भरे खेतों में पहुंच गए। एक जगह क्या देखते हैं कि रहड़ चल रहा है, बैल घूम रहा है और कुएं से पानी निकल रहा है। पास ही एक जिम्मेदार खड़ा है। लुहार का लड़का अपने बाप से कहने लगा, अब्बा मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ, मैं एक मंत्र पढ़ूंगा और बैल बन जाऊंगा। तुम मुझे जमींदार को बेच देना, लेकिन याद रखना मेरा रस्सा उतार लेना, उसे साथ मत देना। लड़के ने कुछ पढ़ा और फिर बैल बन गया और फिर दोनों चलते चलते जमींदार के पास पहुँचे। जमींदार ने इस कदर खूबसूरत और पला हुआ बैल देखा तो कहने लगा, बाबा जी क्या तुमने बैल को बेचना है? लुहार ने कहा, हाँ बेचना है। जमींदार ने पूछा, क्या लोगे? लुहार ने कहा, 5.25 रुपये। जमींदार को सोच में डूबे हुए देखकर लुहार बोला, मेरा बैल बहुत अच्छा है, अगर तुझे यकीन ना आए तो इसे हल में जोड़कर देख ले। जमींदार ने बैल को रहट में जोड़ा। बैल खूब पानी निकालने लगा, उसके पहले वाले बैल से भी कहीं ज्यादा। जमींदार बैल को देखकर राजी हो गया और उसे खरीदने के लिए भी मान गया। लुहार कहने लगा, लेकिन मैंने अपना रस्सा नहीं देना। जमींदार बोला, कोई बात नहीं, तुम अपना रस्सा उतार लो, मैं खुद ही अपना नया रस्सा डाल लूँगा। जमींदार ने 5.25 रुपये दिए और वो बैल खरीद लिया। जब लुहार चलते चलते काफ़ी दूर निकल गया तो बैल ने अपना रुख मोड़ा और भाग खड़ा हुआ, सीधा लुहार के पास पहुंचा और वहां जाकर फिर लड़का बन गया। जमींदार बेचारा हाथ में डंडा पकड़े भागा भागा दौड़ा दौड़ा और हाँफता हुआ लुहार के पास आया और कहने लगा, बाबा तुमने मेरा बैल तो नहीं देखा? लुहार बोला, बैल तो मैं अभी अभी तुम्हारे हवाले करके आया हूँ, बैल कहाँ है? बेचारे जमींदार के वहमो ख्याल में भी नहीं आ सकता था कि उस बूढ़े लुहार के साथ जो लड़का जा रहा है वही उसका भागा हुआ बैल है। जमींदार वापस लौट गया। लुहार और उसके लड़के ने लड़की की दी गई हिदायत पर अमल नहीं किया और रास्ते ही में कमाई करना शुरू कर दी। अब रास्ते ही में उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बूढ़े जादूगर को पता चल गया कि लुहार का लड़का जिंदा है और मेरी कैद से फरार हो चुका है। मेरी अपनी बेटी ने उसे मुकम्मल जादू सिखा दिया है। वाकई ही घर का भेदी लंका ढाता है। जादूगर ने एक बूढ़े आदमी का भेष धारा और उनसे पहले ही आगे रास्ते में आकर बैठ गया। लुहार के लड़के को क्योंकि पहले ही कामयाबी मिली थी इसलिए उसने फिर से लालच किया और इस बार ऊँट बनने का सोचा। अब्बा इस बार तो मेरे बदले पूरे 9 रुपये मांगना और 1 रुपया भी कम मत करना और याद रहे मेरे साथ नकेल मत देना। इतना कहकर लड़के ने मंत्र पढ़ा और ऊँट बन गया। लुहार उस ऊँट का रस्सा पकड़े पकड़े चलता चलता उस जादूगर के पास पहुँच गया जो फकीर का भेष बदले उनका इंतजार कर रहा था। फकीर ने लुहार से पूछा, बाबा जी क्या ऊँट बेचना है? फकीर ने लुहार के दिल की कही थी। उसने खुश होकर कहा, हाँ बेचना है। फकीर ने कहा, क्या लोगे? लुहार ने कहा, 9 रुपये। फकीर ने फौरन 9 रुपये निकाले और लुहार की हथेली पर रख दिए। अब लुहार को याद आया और बोला, मैंने ऊँट के साथ नकेल नहीं देनी। फकीर भी जादूगर था और राजदार था, नकेल के भेद और अहमियत से वाकिफ था और बोला, मैंने तुम्हें मुँह मांगी कीमत दी है और नकेल ऊँट के साथ ही खरीदा है, इसलिए नकेल तो तुम्हें देनी पड़ेगी। गर्ज उनके बीच इतनी बहस और इतनी तूतू मैमे हुई कि राह चलते मुसाफिर रुक गए और इर्द गिर्द खेतों में काम करते हुए किसान भागे भागे आए और वहाँ पर जमा हो गए। फकीर ने लोगों से मुखातिब होते हुए कहा,
लोगों, खुदा लगती कहो, क्या तुमने आज तक ये सुना है कि कोई जानवर बिक जाए और बेचने वाला जानवर बेचने के बाद उसके गले से रस्सा उतार ले? देखो देखो, ये आदमी मुझे पूरी कीमत पर ऊँट बेचने के बाद ये नकेल वापस लेने पर झगड़ा कर रहा है। फकीर की बात में वजन था। जब लोगों ने देखा कि ये तू मैं नकेल के लिए हो रही है तो सबने लुहार को झूठा किया। इतने लोगों के आगे लुहार की पेश न गई। उसे ना चाहते हुए भी ऊँट के साथ फकीर के हवाले वो नकेल करनी पड़ी। फकीर जो जादूगर था और नकेल की हकीकत से वाकिफ था, खुशी के मारे उछलने लगा। लड़का अब जादूगर के कब्जे में था, क्योंकि अब नकेल जादूगर के हाथ में थी और इसलिए उसके लिए अब ये मुमकिन ना था कि वो पहले की तरह आज़ाद होकर वहाँ से भाग जाए। लेकिन लड़का भी अब आम लड़का नहीं था। 2 साल जादूगरने की लड़की की शागिर्दी में रहने के बाद एक कामिल जादूगर बन चुका था। उसने मंत्र पढ़ा और कबूतर बनकर उड़ गया। जादूगर के हाथ में नकेल का दूसरा सिरा फट से नीचे गिर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ऊँट का कहीं नामो निशान भी नहीं था और नकेल नीचे जमीन पर घिसट रही थी। अब जादूगर ने भी मंत्र पढ़ा और बाज बनकर कबूतर के पीछे लग गया। लेकिन लड़का भी कुछ कम नहीं था। शेर को सवा शेर। कबूतर ने जब नीचे झुककर देखा, गांव की कुछ औरतें झुकी हुई छप्पड़ में से हाथ भर भरकर काली स्याह चिकनी मिट्टी निकाल रही हैं ताकि अपने कच्चे घरों और फर्शों पर पोछा लगा सकें, इससे पहले कि बाज कबूतर को पकड़ता। लड़का मंत्र पढ़कर मेंढक बनकर छप्पड़ में जा गिरा। ये देखकर बूढ़ा जादूगर बगला बन गया। छप्पड़ में उतरा और चूंचे मार मार कर मेंढक को तलाश करने लगा। एक गांव की खूबसूरत गोरी लड़की भी अपने लंबे लंबे हाथों से मिट्टी निकाल रही थी। लड़के ने फिर से मंत्र पढ़ा और मेंढक से छल्ला बनकर लड़की की उंगली में चला गया। बगला भगत यानी जादूगर अब उसकी छोटी उंगली से छल्ला निकालने से तो रहा। थोड़ी देर बाद औरतें मिट्टी बर्तनों में डालकर अपने घरों की तरफ चल पड़ी। जैसे ही लड़की अपने घर पहुंची, जादूगर बगले से फकीर बन गया और सदा लगाते हुए उनके घर पर जा पहुंचा। लड़की छन्ने में आटा डाले दरवाजे पर आई। जादूगर बोला, बेटी, मैंने आटा नहीं लेना, मैंने तो वो छल्ला लेना है जो तुम्हारे दाएं हाथ की छोटी उंगली में है। ये बात सुनकर लड़की को गुस्सा आ गया। तू कौन होता है मुझसे ये छल्ला मांगने वाला? जब ये तकरार लड़की की माँ के कानों में पड़ी तो वो भी दरवाजे पर आ गई। अब जो माँ को असल बात पता चली तो वो लड़की से बहुत खफा हुई। माँ शक्की मजाज औरत थी। लड़की से कहने लगी, तू तो छप्पड़ से मिट्टी लेने गई थी, ये छोटी उंगली में छल्ला कहाँ से पहनवा कर आ गई? बता, तेरे किस यार ने ये छल्ला दिया? इसे फौरन उतार और फेंक। आ लेने दे तेरे बाप को, सब बताती हूँ। इससे पहले कि तू कोई चांद चढ़ाए, कर देती हूँ तेरे हाथ पीले। लड़की बेचारी अजीब मुसीबत में फंस गई थी। उसने अपनी छोटी उंगली से छल्ला निकालकर फेंक दिया। फकीर इसी इंतजार में छल्ले पर आंख रखे खड़ा था। उसने छल्ला पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। लड़का फिर छल्ले से कबूतर बनकर उड़ गया और जादूगर बाज बनकर उसके पीछे लग गया। आखिर राजा का महल आ गया। दोनों उसके ऊपर उड़ रहे थे। राजा कचहरी लगाए बैठा था। इससे पहले कि बाज कबूतर को पकड़ता, लड़का कबूतर से सोने की तार बन गया और बादशाह के ताज में जाकर गिर गया कि यहाँ से तो बाज मुझे नहीं निकाल सकेगा। जादूगर फिर बाज से फकीर बन गया और बादशाह के सामने आकर सदा लगाई। राजा ने कहा, मांग, क्या मांगता है? फकीर ने कहा, राजा, तेरे ताज के अंदर जो सोने का तार है वो मुझे दे दे। ये बात सुनकर राजा को बहुत हैरत हुई कि मेरे ताज में सोने का तार कहाँ से आया। ये सोचकर उसने एक हाथ ऊपर उठाया कि ताज में हाथ डालकर देखे तो सही। जो ही राजा ने ताज में हाथ डाला और राजा के हाथ में आते ही तस्बीह बनकर टूट गया और जमीन पर बिखर गया। फकीर फौरन मुर्गा बनकर उन्हें चुगने लगा और लड़का देखते ही देखते मोतियों से बिल्ला बनकर उसने मुर्गे को पकड़कर दबोच लिया और वहीं पर मार दिया। राजा दम बखुद हैरान परेशान ये सब कुछ देख रहा था। हैरत से उसकी आंखें फटी जा रही थी। ऐसा मंजर राजा ने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। उधर मुर्गे को मारने के बाद लड़का अपनी असल हालत में वापस आ गया था और आगे बढ़कर राजा के रूबरू आदाब बजा लाया। राजा, जो अभी तक हैरत में डूबा हुआ था, बामुश्किल ही बोला, ये सब क्या माजरा है? लड़के ने कहा, महाराज बताइए, क्या आज से पहले आपने ये सब देखा या सुना? राजा हैरत से मुंह में उंगलियां दबाए हुए बोला, नहीं, कभी नहीं। इस पर लड़के ने कहा, महाराज, आप अपना मुआहदा याद कीजिए जो आपने मेरे बाप से किया था। मैं उसी लोहार का लड़का हूँ। मैंने भरी कचहरी में इतने लोगों के सामने आपकी शर्त पूरी कर दी है। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए और मुझे राजकुमारी का रिश्ता दीजिए। राजा के पास अब कोई रास्ता नहीं रहा था। उसे मजबूरन हाँ करना पड़ी और अपनी बेटी का रिश्ता उसे देना पड़ा। चंद रोज बाद लोहार अपने लड़के को सजाए घोड़ी पर बिठाए बारात लेकर राजा के महल में आ गया। धूमधाम से शादी हुई। लोहार का लड़का बादशाह का दामाद बन गया। चूँकि राजा का कोई बेटा नहीं था, इसलिए राजा ने लोहार के बेटे को ही अपना वलीअहद बना लिया। चंद सालों बाद जब राजा मर गया तो लोहार का लड़का तख्त पर बैठा और निहायत आन बान से हुकूमत करने लगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔